Good morning to all students and welcome to Edify JNEET of Pragyan batch class 11th. We are discussing about the living world. In previous classes we have discussed about taxonomy, rules for naming binomial nomenclature. See, whatever part I have discussed in case of living world, the question always comes in the NEET exam. So revise my notes thoroughly. Okay. So now today we are going to study about the taxonomic categories. This is the topic of today's class. तो what is taxonomic categories? क्या होता है categories? Before going to that, we'll discuss about taxonomy hierarchy. Hierarchy क्या होता है ना? देखो, we have studied about classification, right? Classification is not a single process. Single process नहीं है ये. It happens with the help of different taxa at higher level. Classification I'm writing for you so that you can understand. Classification is not a single process. Single process नहीं है ये. Classification is not a single process, single step. Rather, organisms are classified. Organisms are classified at among taxa, and you all know about taxa. I'll explain about taxa. Like example I'm giving you, जैसे कि wheat हो गया, wheat, rice, this all belong to a plant. These are all the species of plants. And animals like dog, camels, buffalo, this all belongs to animals, class mammal. Okay. So what you can say, this taxa is nothing but, this is the scientific term the scientist gave, the scientific term. जैसे कि हम कहते हैं ना कि wheat, rice, ये सब plants के species हैं, सारे plants हैं, तो उसको कैसे divide किया साइंटिस्ट ने? ऐसे तो यूं ही तो नहीं बोल दिए प्लांट्स है, तो वो जो साइंटिफिक टर्म है उसी को कहेंगे टैक्सा. रिमेंबर द साइंटिफिक टर्म इज टैक्सा. ठीक है. नाउ दिस जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस एंड विल गो टू टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ओके, सो दिस इज अबाउट टैक्सा and how the organisms are classified. The organisms are classified based on hierarchy of taxa. The organisms are classified according to taxa at different levels. And this overall taxonomic arrangement is known as taxonomic hierarchy. Taxonomy hierarchy किसको कहते हैं? The overall arrangement of different taxa is known as taxonomic hierarchy. The overall arrangement. The overall arrangement, okay, of taxa. The overall arrangement को क्या कहेंगे? Taxonomic hierarchy. So what scientists did? Scientists divided the taxonomic categories into 7 different parts. Taxonomic categories को scientists ने divide किया था. Scientists divided taxonomic categories. ओके, साइंटिस्ट ने कैसे डिवाइड किया था? आई शो द हियरार्किकल अरेंजमेंट फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, तो सबसे पहले आता है स्पेसीज, देन जेनस, फैमिली, स्पेसीज, जेनस या फैमिली, ऑर्डर, then class, then phylum,
and then kingdom. There was no space here, so I have written this way. Species is the very smallest one. This is the increasing order. Always species is the very smallest one and kingdom is the largest. So you have to remember, ये सबसे छोटा है, smallest, and this is the largest. Okay. So the question in NEET comes like that. This they'll just give certain options, and what they'll say, divide this taxonomic categories. इसको क्या कहते हैं? Taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy. हिरार्की इसलिए कहते हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम प्लेस करते हैं. सबसे बड़ा किंगडम होता है, सबसे छोटा स्पेसिस होता है. तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि दे विल गिव 4 ऑप्शंस एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताएंगे. सपोज स्पेसिस, जेनस, वन ऑप्शन विल बी दिस. सेकंड ऑप्शन क्या होगा? जेनस पहले दे देंगे, बट जेनस इज नॉट द स्मॉलेस्ट वन, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट, kingdom is the largest. So this order you have to remember. This is the increasing order of taxonomic hierarchy. So you have to remember, just note down it. Okay. So this is the taxonomic hierarchy you have to remember. Now let's go to next point, that is taxonomic system for like plant and animal. In case of plant, what happens is that phylum, in case of plants we include it in division. phylum animal में होता है, animal kingdom या animal हम divide कर रहे हैं तो उसमें phylum होता है, और plants में क्या होता है? phylum is replaced by division. Okay, तो उसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक सिस्टम, प्लांट, एनिमल. ओके, एनिमल, प्लांट में क्या होता है? डिवीजन, एंड एनिमल में क्या होता है? इट्स फाइलम. प्लांट में डिवीजन, एनिमल में फाइलम. और उसके बाद होता है जैसे कि स्पेसिस. The rest remain same. Species, genus, family, order, phylum or division, and then kingdom. बाकी सेम रहता है, सिर्फ ये फाइलम होता है एनिमल के केस में और डिवीजन होता है प्लांट के केसेस में. ये याद रखिएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमिक सिस्टम. नाउ विल डिस्कस each points from species to till kingdom. Species क्या होता है? With the help of examples I'll try to explain you. Like species, the definition of species and how do the species differ from genus. Okay, so let's discuss the species. First part is species. Species क्या होता है? Species are a group of similar organisms which can interbreed freely among themselves. Species is defined as, species are a group of similar, I'll explain very minor details of species. Species are a group of similar organisms which can interbreed among themselves to produce a fertile offspring. चलो, so what is the definition of species? Species क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होगा, डिसिमिलर नहीं होगा. ये रिमेंबर याद रखिएगा, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, be it a male, be it a female, male female, be it animals, be it a plants. स्पेसिस पे बहुत सिंपल रखिए, या तो प्लांट स्पेसिस पकड़ो या एनिमल स्पेसिस पकड़ो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी इट अ प्लांट स्पेसिस, बट एनिमल स्पेसिस. तो हम बात करें स्पेसिस के बारे में, विच कैन इंटरब्रिड
इंटरब्रीड होना बहुत ज़रूरी है। इंटरब्रीड होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इंटरब्रीड होंगे तो ही नई स्पेशीज आएगी, न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होगा। सो इंटरब्रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ whether it be plants and whether it be animals। तो स्पीसीज में क्या होता है? which can interbreed among themselves to produce a fertile offspring। जब इंटरब्रीडिंग होगी, जब मेटिंग होगा तो क्या होगा? प्रोड्यूस क्या होगा? ऑफस्प्रिंग होगा। बी इट अ प्लांट स्पीसीज बी इट एन एनिमल स्पीसीज, दोनों में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, है ना। चलिए, व्हाट स्पीसीज डू? दे विल शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे विल शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ऐसा नहीं कि बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अलग हैं, डिसिमिलर हैं। नो, कैरेक्टरिस्टिक्स दे विल शेयर ऑलवेज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो नोट डाउन इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे स्पेसिस के बारे में। टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस, जो स्पेसिस बहुत क्लोजली रिलेटेड है, दे मे हैव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज में बी सेम। जो स्पेसिस क्लोजली रिलेटेड है, बहुत क्लोज है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका मॉर्फोलॉजिकल बाहर की जो अपीयरेंस होंगी वो भी सेम होंगी। ओके, टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस शेयर हैव डिस्टिंक्ट मतलब अपीयरेंस, इसका मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर की अपीयरेंस होती है, बाहर देखने में कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है ना। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस हैव डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेसिस। एग्जाम्पल देखिए, लाइक सोलानम, बैंगीफेरा इंडिका, हर किसी को पता है, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। एंड रिमेंबर, whenever you will write scientific name, the genus and species, the first letter you have to remember. Mangifera indica, Solanum tuberosum, it's the scientific name of potato, tuberosum. And one more common example is Panthera leo. Panthera leo. So this is for lion, this is for potato, and this is for mango. Okay, why I am explaining it with the help of examples? So that you should know which among the examples which is genus, which is the species. तो देखिए, इसमें this is the genus, this is for genus, right? G. This is indica is the species. So this is प्रजाति। मैंगो की बहुत सारी प्रजाति होती है ना, तो बहुत सारी स्पेसीज होती हैं, लेकिन ह्यूमंस का एक ही एलोन स्पेसीज होता है, होमो सैपियंस। हमारे जैसे ही सब ह्यूमंस की स्पेसीज सिर्फ एक ही स्पेसीज होती है। लेकिन अगर आप पोटैटो में चाहिए, आलू की कई सारी प्रजाति होती है। लाइक आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो बिल्कुल आलू की तरह होता है, लेकिन जैसा हम आलू की सब्जी बनाते हैं, स्वीट पोटैटो तो बस हम उसे वो आग में सेक लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो भी पोटैटो की वैरायटी है। सोलानम ट्यूबेरोसम। पैंथेरा लियो या पैंथेरा टाइग्रिस, लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस जो टाइगर है, ठीक है। तो इसमें पैंथेरा हो गया जेनस, लियो हो गया स्पेसिस। आइडेंटिफाई कर लिया आपने, जिसमें जेनस कौन सी है, स्पेसिस कौन सी है। दिस इज द स्पेसिस, ठीक है। अब बात करते हैं सोलानम में क्या क्या स्पेसिस होते हैं। ये सोलानम है, सोलानम की बहुत सारी स्पेसिस होती है, वैराइटीज़। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू वन वैराइटीज़, जैसे कि सोलानम इंक्लूड, हाँ, नाइग्रम, सोलानम नाइग्रम। उसका कॉमन नेम क्या है पता है? ब्लैक नाइट शेड। कॉमन नेम है ब्लैक नाइट शेड। तो सोलानम ट्यूबेरोसम पोटैटो है, लेकिन ट्यूबेरोसम की जगह सोलानम जेनस है, लेकिन उसकी अलग अलग स्पेसिस होती हैं। दूसरा बात करते हैं पैंथेरा लियो की। जैसे कि ये पैंथेरा है, पैंथेरा जेनस के बहुत सारे स्पेसिस होंगे, बहुत सारी प्रजाति है। जैसे कि टाइग्रिस हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस फॉर टाइगर,
पैंथेरा लियो फॉर लायन, पैंथेरा पर्डास लियोपार्ड। देखो टाइगर और लियोपार्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लियोपार्ड कैसे, उनकी बॉडी पे ऐसे चलते 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 होते हैं, और टाइगर कैसा होता है, लाइनिंग होती है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसीलिए हम ये स्पीसीज़ के बारे में बता सकते हैं कि ये जो स्पीसीज़ इनकी बहुत सारी प्रजाति होती है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। होमो सैपियंस, द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन्स, होमो सैपियंस हमारी सिर्फ एक ही स्पीसीज है, सब ह्यूमंस। हमारे में अलग अलग वैरायटीज़ नहीं मिलते हैं कि ह्यूमन स्पीसीज में अलग अलग, सब देखने में सेम है। हो सकता है थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगी, 99% सेम होता है एवरीथिंग, 1% डिफरेंस होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्पीसीज। नेक्स्ट विल गो टू जेनस। नेक्स्ट इट्स जेनस। सो व्हाट इज जेनस? अभी मैंने आपको बताया जेनस में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा कम होती है कंपेयर टू स्पीसीज। जेनस इज अ टैक्सॉन एट लेवल, एट हायर लेवल। स्पीसीज से थोड़ा हायर लेवल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले स्पीसीज एंड देन जेनस। तो जेनस क्या होता है, रिप्रेजेंट्स टैक्सॉन एट हायर लेवल। थोड़ा हायर लेवल होता है किससे, देन स्पीसीज। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट जेनस। वील सी द एग्जाम्पल लाइक पोटैटो, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है, पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल। पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल, दिस 3 जो प्लांट स्पीसीज हैं, ये तीनों ही का जो जेनस है वो है सोलानम। अभी मैंने बताया था ना, सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम इसका अलग स्पीसीज है, अलग स्पीसीज सेम है, इन सब का जेनस अलग है, स्पीसीज जेनस सेम होगा इसमें। सोलानम मतलब ये सब सोलानम जेनस से बिलोंग करते हैं। मैंने पहले दिखाया स्पीसीज सेम, अब ये सेम जेनस के अलग अलग स्पीसीज है कि नहीं। पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल में सिमिलरिटीज़ कहाँ दिखती हैं, पोटैटो अलग है, टमाटो भी अलग है, ब्रिंजल भी अलग है। तो जेनस एक है, स्पीसीज अलग अलग है। ठीक है, और बात करते हैं, यह हो गया प्लांट स्पीसीज का एग्जाम्पल। नाउ वील गो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल स्पीसीज। एनिमल स्पीसीज में देखिए लाइक लायन, लायन पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। फिर आपका टाइगर लाइक पैंथेरा टाइगरिस, टाइगर का क्या है, पैंथेरा टाइगरिस, टाइगरिस। एंड फॉर लियोपार्ड इट्स पैंथेरा पर्डास। सो इसमें क्या है कि इन सब का जेनस को क्या है, इन सब का जेनस कॉमन है, क्या है, पैंथेरा। इन सब का कॉमन जेनस है, कॉमन जेनस, जेनस दैट इज पैंथेरा। हो गया, प्लांट एनिमल स्पीसीज के एग्जांपल्स देके मैंने आपको जेनस एक्सप्लेन किया। नाउ विल गो फॉर फैमिली। अब बात करते हैं फैमिली के बारे में, परिवार, फैमिली। फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ग्रुप होते हैं, जितने भी जेनरा होते हैं, अभी जेनस मैंने बताया, जेनरा किसको कहेंगे, टोटल प्लूरल फॉर्म होगा इसका जेनरा। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बट लेसर देन जेनस एंड स्पीसीज। जेनस और स्पीसीज में जो सिमिलरिटीज देखने को मिली हम लोगों को, फैमिली में इतने ज़्यादा सिमिलरिटीज नहीं मिलती है। इन केस ऑफ प्लांट्स सिमिलरिटीज इतनी नहीं होती, थोड़ी डिसिमिलरिटीज होती हैं। तो फैमिली represents a group of related genera with less similarities, या आप less similarities भी कह सकते हो, dissimilarities कह सकते हो, with less similarities than that of plants and animals, या than that of not plants and animals, it's than that of genus and species। जो सिमिलरिटीज़ हमने जेनस और स्पीसीज में देखने को मिली, वो सिमिलरिटीज़ हमें फैमिली में नहीं मिलेगी।
एंड स्पीसीज। हो गया। सो दिस इज अबाउट फैमिली। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो, सोलानम, एग्जाम्पल देख के समझाएंगे। प्लांट स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, लाइक सोलानम, सोलानम हो गया। फिर पेटूनिया एंड धतूरा, धतूरा भी आप सब लोगों को पता है, धतूरा बहुत फेमस है, धतूरा प्लांट। धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलानेसी, इनकी फैमिली क्या होगी? सोलानेसी, फैमिली का नाम है सोलानेसी। whenever you are writing the family for any plant species, then this EAE, this is the term used, this is the term used, very basic thing, I think you should know, but I'm explaining. This is the term used whenever you are writing any plant species or writing the family of that species or genus. This is the term used for writing name of family. This term, हर सोलानेसी लास्ट में EEAE, ये आपको लास्ट में लगाना ही पड़ेगा अगर आप फैमिली लिख रहे हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल स्पीसीज के बारे में। दिस वॉज द प्लांट स्पीसीज। नाउ विल सी द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल। जैसे कि मैंने अभी धतूरा और सोलानम के बारे में बोला, सोलानम और धतूरा दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज है। देखो, सोलानम हो गया पोटैटो, धतूरा एक दूसरा ही प्लांट है, फिर भी वो सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं ना, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं है, फिर भी उसको साइंटिस्ट ने एक फैमिली में रखा हुआ है। नेक्स्ट इज एनिमल स्पीसीज के एग्जाम्पल देख लो। अब एग्जाम्पल जैसे कि पैंथरा, पैंथरा में क्या है? लायन, टाइगर, लियोपार्ड। लायन, टाइगर, लियोपार्ड, इन तीनों की जो जेनस है कौन है? पैंथरा। और कैट का जेनस क्या है? जेनस क्या है? फेलिस, फेलिस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस कैट को कहते हैं। देखो, लियोपार्ड, टाइगर, लायन, पैंथरा है। अब कैट तो फेलिस जेनस है, बट फिर भी साइंटिस्ट ने उसकी कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती होंगी, इसलिए इन दोनों को, ये चारों को, लाइक लायन, टाइगर, लियोपार्ड, फेलिस को फैमिली फेलिडी में लिखा। फैमिली फेलिडी। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ तो नहीं है कैट के साथ, लियोपार्ड की कौन सी सिमिलरिटीज़ है? थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ के कारण इसको थोड़ा सिमिलरिटीज़ है, जेनस और स्पीसीज में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है इन केस ऑफ दिस कैट और लियोपार्ड या फिर टाइगर या फिर लायन, फिर भी इसको साइंटिस्ट ने कहाँ रखा? फैमिली फेलिडेई। ओके, चलो, फैमिली हो गया। नाउ विल सी अबाउट ऑर्डर। अब बात करते हैं ऑर्डर की। स्पीसीज हो गया, जेनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर बात करते हैं। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर क्या कहेंगे? जितने भी फैमिलीज हैं उन सबको एक सीरियल ऑर्डर पे रखेंगे, असेंबल करके। कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, असेंबलिंग करना। जैसे कि आप कभी, जैसे कि स्कूल जाते हो, मॉर्निंग असेंबली प्रेयर करते हो, तो कैसे होता है? सीरियली होता है ना, कि सब एक साथ एकजुट होकर थोड़ा ना प्रेयर करते हो, एक लाइन बनाते हो, एक रो बनाते हो, जो छोटा है वो पहले खड़ा होता है, जो थोड़ा बड़ा है वो पीछे खड़ा होता है। द सेम थिंग हैपेंस हियर, असेंबलेज होता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ different families which exhibit मतलब जो few similar characteristics शो करेंगे, कुछ similar characteristics ऑर्डर में होंगे। few similar characteristics हो गया। So just note down it about order. But see, जो सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे वो जेनस और फैमिली से
कम होंगे। जेनस और स्पीसीज में जितना सिमिलरिटीज होंगी वो ऑर्डर में और कम होंगी। द सिमिलर कैरेक्टर्स हाउएवर लेस इन नंबर इन कंपेयर टू व्हाट, जेनस और फैमिली। सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होगा, लेस होगा। जितना ही आप अपनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से ऊपर जाओगे, लाइक स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, उतना ही सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कम होती जाएंगी। ओके, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स is less compared to less in number as compared to genera, different genera included in a family. Okay, I hope you are getting my point. So this is about order. Examples देंगे हम आपको, example से आप बेहतर समझोगे. So let's see the example of order. Example में देखिए, species like, families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales, mainly based on floral characters. अब देखो, फ्लोरल कैरेक्टर्स हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम का पार्ट है. हम वहाँ पे आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होता है उसके डिटेल्स बताएंगे. फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल. प्लांट फैमिलीज, प्लांट की फैमिलीज हैं. फैमिलीज में हमेशा ए लास्ट में ई लगाना है, लाइक Convolvulaceae और Solanaceae, Naceae. Convolvulaceae, Solanaceae, they are included in the order. किसमें इंक्लूड है? इंक्लूड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. अब देखो, ये दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं है, लेकिन ये दूसरे ऑर्डर में प्लेस हो रहे हैं, सेम ऑर्डर में प्लेस हो रहे हैं. क्यों? बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल अपीयरेंस के कारण इस प्लांट को हम लोग सेम ऑर्डर में रख रहे हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर. और भी एग्जांपल्स देख लीजिए. प्लांट स्पेसिस का बता दिया तो एनिमल भी बता दें, वो क्यों रुके. एग्जांपल जैसे कि कार्निवोरा. कार्निवोरा में क्या होते हैं? सारे लाइक कैट्स, डॉग्स कार्निवोर में आते हैं, लायंस, है ना, सब कार्निवोर में. कार्निवोरा में क्या होगा? कार्निवोरा ऑर्डर है कार्निवोरा. इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? It includes families like Felidae and Cancidae. हो गया. सो दिस इज अबाउट द एनिमल स्पीसीज. कार्निवोरा में ये सारे एनिमल कार्निवोरा, क्योंकि बहुत कार्निवोरा में एक टोटल फैमिली है ना, बहुत जितने जानवर है सब जो कार्निवोरा में बिलोंग करते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे. भले ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो या डिसिमिलर, इतना ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता इन केस ऑफ फैमिली, सॉरी ऑर्डर. नेक्स्ट इज ऑर्डर हो गया. नेक्स्ट इज क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम. बात करते हैं क्लास. सो व्हाट इज क्लास? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. जितने रिलेटेड ऑर्डर्स कितने रिलेशन में हैं उसमें उसको हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे. रिलेटेड ऑर्डर्स. दिस इंक्लूड्स, क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. ऑर्डर्स के बाद क्लास, सारे ऑर्डर्स को रिलेट करके हम क्लास में जाएंगे. एग्जाम्पल ऑर्डर. अब आता है ऑर्डर प्राइमटा. ऑर्डर प्राइमटा इंक्लूड्स मंकी, गरीला. प्राइमटा में क्या होता है? मंकी, गोरिल्ला,
देन वन मोर स्पीसीज इज गिबन. सो लाइक ह्यूमंस, जो एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे, एनिमालिया में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं. उन ऑर्डर में एक ऑर्डर है प्राइमटा. प्राइमटा में कौन बिलोंग करते हैं? मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन. तो उसमें क्या होता है? अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा डेट इंक्लूड्स दिस मैमल हैज ऑर्डर्स टू. हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर कार्निवोरा. कार्निवोरा में क्या होगा? जितने भी लाइक एनिमल्स होंगे, लाइक टाइगर हो गया, कैट हो गया, लायन हो गया, सब कार्निवोरा में आएंगे. तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं, ये क्लास है, ये प्राइमटा है ऑर्डर, ठीक है, और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. हो गया ना? रिलेटेड ऑर्डर्स कि कौन से ऑर्डर में कौन से ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करेंगे, उसी को बोलेंगे क्लास. रिलेटेड ऑर्डर्स को ही क्लास बोलेंगे. ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज. चलो, ऑर्डर क्लास हो गया. नेक्स्ट मूव ऑन टू फाइलम. फाइलम, अब बात करते हैं फाइलम. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स क्लासेस विद फ्यू सिमिलैरिटीज. अब ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, अब बात करेंगे फाइलम. दिस इंक्लूड्स classes with few मतलब बहुत कम सिमिलरिटीज होंगे, लेकिन बहुत कम. with few similarities. This category includes classes with few similarities like phylum Chordata. phylum Chordata में क्या होता है? क्लासेस होता है. Chordata एक बहुत बड़ा फाइलम है जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं है. लाइक एम्फीबियंस, फिश, रैप्टाइल्स, मैमल्स क्यों एक साथ Chordata में रखे हुए हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम, जो बैकबोन होता है. प्रेजेंस ऑफ बैकबोन इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. और एडल्ट्स में क्या होता है? वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है ना? एग्जाम्पल लिखिए. फाइलम Chordata. फाइलम Chordata में क्या क्या होता है? फाइलम Chordata includes species, includes classes, fishes, amphibians, reptiles, mammalia. इन सबको हम Chordata में क्यों डिवाइड करते हैं? 2 रीजंस है. एक है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दूसरा है होलो न्यूरल नर्वस सिस्टम. ओके, नेक्स्ट इज प्लांट में. देखिए, एनिमल का तो ये फाइलम Chordata हो गया. प्लांट में क्या होता है? सिर्फ 2 डिवीजन होता है. एक एंजियोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म, और एक इंक्लूड्स क्लास डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स. एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अपने पढ़ा हो, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे. प्लांट की बात से ये एंजियोस्पर्म में क्या होगा? मोनोकॉट्स, सिंगल सीडेड मोनोकोटिलेडन्स. मोनोकोटिलेडन्स मतलब क्या होता है? सिंगल सीडेड प्लांट. जिस प्लांट में सिंगल सीड होता है, लाइक चावल, उसमें एक ही सीड होता है. और बहुत सारे सीड वाले होंगे डाइकोटिलेडन. प्लांट में, प्लांट की डिवीजन एंजियोस्पर्म में सिर्फ 2 ही होगा, एक मोनोकॉट, एक डाइकोट. ओके, so this is the examples, including examples of phylum. Phylum हो गया. Next we'll move on to its kingdom. Kingdom, the last phylum. Kingdom. अब बात करते हैं किंगडम की. किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सॉन. सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सा था? स्पीसीज था. और किंगडम सबसे हाईएस्ट है. क्वेश्चन आता है नीट में, देखने आप ध्यान से पढ़िएगा. हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सॉन को क्या कहेंगे? इट्स किंगडम. ओके, एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स को हम एज ए ब्रॉड कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो एनिमल्स को हम किंगडम एनिमालिया में रख सकते हो. प्लांट किंगडम प्लांट में, जितने भी प्लांट्स हैं सब किंगडम प्लांट में आएगा. फिर उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, सब स्पेसीज या स्पेसीज, जेनस आता है ना. जैसे कि एनिमल,
animalia, animals belongs to kingdom animalia, and plants belongs to kingdom plantae. ब्रॉड टर्म में अगर हम कहें तो प्लांट किंग, जो प्लांट स्पेसिस है वो प्लांटी में बिलोंग करते हैं, एनिमल जो होता है एनिमल किंगडम पे. Now we'll see, I'll just include one more point. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxons share. The number of similar characters decreases as we go higher from the species to kingdom taxa. जो मैंने आपको कहा वही मैं आपको लिख लेती हूँ, because एग्जाम्स में आते हैं. Lower the taxa, जितना ही लोअर टेक्सा, लाइक लोअर टेक्सा में कौन सा आएगा, स्पीसीज आएगा. हाईएस्ट में कौन सा जाएगा, किंगडम जाएगा. लोअर द टेक्सा, मोर आर द characteristics, more are the characteristics that the members within the plant share. And one more thing, the number of, इसका मतलब ये हुआ the number of similar characters decreases. जितना आप अबव जाएंगे, लाइक स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे, उतना ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाएंगे. द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स decreases as we move on to, as we go to हायर स्पीसीज. हायर स्पीसीज कौन सा होगा, लाइक किंगडम जो होगा हायर स्पीसीज. एज वी गो टू हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम. समझ गए आप लोग? सो दिस पॉइंट रिमेंबर. सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये चैप्टर का, लिविंग वर्ल्ड का. Again we'll meet in the next class with this chapter, continue again. So with this I'll conclude my class today. Thank you so much.